Hello friends, welcome back to the channel Writing Buddha. So today we are going to talk about another book, and the name of the book is The Protectors of Kavach, written by Pranay. So this is a trilogy, and this is just the first part of the trilogy which has been released recently. So book is published by Pranay himself and the book is of around 309 pages. So पहले कि हम लोग आगे जाएं इस रिव्यू में, I would also like to tell you all that the Story Inc has picked up this book to pitch it for the movie adaptation. So very soon we will be seeing the movie adaptation of the book that is in my hand right now. So let's start with the story. So story of the book is something like that. The present day Shivgarh has an ancient structure of Trishul. So it is, everyone believes that because of Trishul the economy of Shivgarh is blooming and everyone is very, very happy in this area. Now there is also an ancient structure held which is has some secret which will shake the world. Now how the ancient history and this current scenario of Shivgarh are going to get together is what this trilogy is going to talk about. So that's the basic story. Now this Trishul is being protected by a family and Rudra is part of that family, and this is the present day Shivgarh part where he's not aware about it. So something like how it happens in Brahmastra, where Ranbir Kapoor is not aware about his powers but someone else makes him realize about it. Similarly here his grandfather is going to give him some advice, some references, some hints about how he is connected with everything, and that is what keeps happening throughout the story wherever the present day timeline has been narrated. Now the book has been divided into two different parts. One is ancient history and another is present day scenario in Shivgarh, which I have already told you about. The ancient history is again divided into two different timelines, and one is from 600 BC and another is from 570 BC. So when you will be reading about anything that happens in the ancient history part, that is 600 to 570 BC, you will find many relation with the characters of Mahabharata. Whereas when you will read anything about present day Shivgarh, you will find the references of the things written in the ancient history timeline, that is from 600 to 570 BC. So that is how author keeps you excited and curious about how the whole story is connected, if it has some relevance with Mahabharata also, or if it is confined between this ancient history of 600 BC only. So talking about the whole way the book has been written, it is a perfect blend of fiction, fantasy, mythology, religion, history, science, supernatural elements, and I would say that it is one of the outstanding attempt by the author because he enables you to visualize everything that he has written. So अगर कोई author आपको वो दुनिया दिखा पा रहा है आपके आंखों में, आपके दिमाग में जो उसने लिखी है, तो मुझे लगता है वो author की किताब उसी तरीके से सक्सेसफुल हो गई. सो जब आप इस किताब को पढ़ रहे होते हो तो आप बहुत सी चीज़ें अपने आप ही विजुलाइज कर लेते हो. तो जैसे कि कैरेक्टर्स की बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पे बताया हुआ है कि आर्यन और काल की दोस्ती दिखाई गई है. जब आप आर्यन काल की दोस्ती के बारे में पढ़ते हो तो आपको RRR मूवी अभी जो आई थी साउथ इंडिया की, आप उन दोनों एक्टर्स और उन दोनों की जो कैमराडेरी थी आपको वो एकदम उनकी कहानी में रिफ्लेक्ट होगी. जैसे कि मैंने बताया जब रुद्र की बात होती है तो आपको पूरा ब्रह्मास्त्र के सीन नज़र आते हैं अपने आंखों के सामने. तो इस तरीके से इसको बहुत ओवर द टॉप और आउट ऑफ द वर्ल्ड तरीके से किताब लिखी हुई है प्रणय ने. तो आप इसको जब पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ विजुअलाइज करते रहोगे अपने दिमाग में. राइटिंग स्टाइल की बात करें सो आई वुड से द इंग्लिश, द कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ द ऑथर इज वेरी इंप्रेसिव. द वे ही राइट एक्शन सीन्स, ही जस्ट takes you into the whole scene. You will feel that all the fightings and everything is going in front of you. So the very first scene where Kal fights in a jungle in this typically initial part of the book, you will that is when actually the book's excitement started taking upon me into it, and I got indulged in this story. So author's narration is also very fast paced, so even when the book is of 350 pages you don't feel bored. You love the way he crafts sentences and he writes his story. He tries to define things between two different eras, and he is able to aesthetically divide and narrate the stories the way it should be in both the eras, because 600 BC में हमको पता है कितनी चीज़ें नहीं थी और प्रेजेंट डे में हमको पता है कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है. अब चूँकि ऑथर खुद एक
टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब ही इज़ अ फुल टाइम टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। तो उन्होंने साइबॉर्ग नाम का एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इस किताब में डाला है प्रेजेंट डे में। तो जब आप वो पढ़ोगे तो बहुत ही आपको एक थ्रिलिंग एंगल देगा, और यही कुछ साइबॉर्ग्स का जब आप पार्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हो, तो आप वो इमेजिन करने लगते हो। सो बहुत ही मस्त एकदम फैंटेसी वर्ल्ड में आप चले जाओगे। नाउ टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स, दैट जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट डे के सिनेरियो में भी, क्योंकि अब सब कुछ मॉडर्न है, फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कोल माइन के बारे में, कवच के बारे में, त्रिशूल, शिवगढ़ गांव, इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, उससे ऑथर की क्रिएटिविटी का क्या लेवल है उससे हमें पता चलता है। उन्होंने इतना क्रिएटिविटी के साथ ये कहानी लिखी हुई है कि हर एक लेवल पे आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये इन्होंने कैसे सोचा, ये कैसे लिखा हुआ है, ये सच में हुआ होगा क्या, बट स्टिल यू वांट टू बिलीव इट, क्योंकि इतने कन्विंसिंग तरीके से वो चीज़ लिखी हुई है। सो यू नो, हेड्स ऑफ टू प्रणय फॉर द सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट सहर्षि's कैरेक्टर। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री में जब जाते हैं तो सहर्षि के पास काल एक स्टूडेंट बन के आते हैं। अब जब आप सहर्षि के ओपिनियन काल के बारे में पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बताया, महाभारत के रेफरेंसेस मिलेंगे, तो आपको द्रोणाचार्य और एकलव्य का वो पूरा सेगमेंट की याद आ जाएगी। सिमिलरली आप जब काल की कहानी उसके नज़रिए से पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पूरी कर्ण की कहानी चल रही है, यहाँ पे ये काबिल है सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसको वो इज्जत नहीं मिल रही जो वो डिज़र्व करता है। तो इस तरीके से इनके कैरेक्टर के बीच का पूरा कैमरेडरी आपको एंशिएंट हिस्ट्री वाले टाइमलाइन में पढ़ने को मिलेगा। अब प्रेजेंट डे में जो रुद्रा है, तो रुद्रा के साथ उसके बहुत से लोग हैं साथ में, जो उसके साथ लड़ रहे हैं कवच को बचाने के लिए, या उसके साथ रहते ही हैं, फ्रेंडशिप्स ही है, उनके ग्रैंडफादर हैं। तो जब आप इन लोगों की पूरी बॉन्डिंग और ये सब देखते हो, किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रुद्र के पास कुछ ऐसी पावर है उसको भी अंदाज़ा नहीं है, तो जब वो पावर ट्रिगर होती है तो वो खुद उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। तो आप बहुत एम्पैथाइज करोगे इन लोगों के साथ, आप बहुत कनेक्ट करोगे, आप इनके लिए फील करोगे। सो ये भी बहुत अच्छी तरीके से ऑथर ने आपको उस कहानी में लेके गए और आपको फील कराया कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है रुद्र और उसके आसपास वालों के साथ। उसकी जो रिलेशनशिप उसके ग्रैंडफादर के साथ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करी गई है। सो इनिशियली यू विल फाइंड दिस टू बी अ वेरी स्लो रीड बिकॉज there are multiple timelines, multiple characters, and even in ancient history 2 timelines there are same characters but their dynamics have changed। अब वो पहले जो दोस्त थे वो अब दुश्मन हो गए हैं, जो कुछ दुश्मन है वो दोस्त हो गए हैं, ऐसी थोड़ी सी कहानी बदल चुकी है। तो ये थोड़ा आपको प्रेमाइस समझने में टाइम लगता है, बट एक बार आपको प्रेमाइस समझ में आ गया तो फिर तो आप इस किताब को 1-2 सिटिंग के अंदर ही निपटा दोगे। अब सेकेंडली मैं एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात करूं तो जब प्री क्लाइमेक्स चल रहा था तो द स्टोरी समहाउ स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग वेरी स्लोली। तो कुछ खास हो नहीं रहा था, कुछ कहानी रुकी सी थी, और मैं वही सोच रहा था कि जस्ट बिकॉज दिस बुक इज़ गोइंग टू बी इन 3 पार्ट्स, बिकॉज ये एक ट्रायलॉजी है, कि ऐसा तो नहीं ऑथर जानबूझ के कुछ ऐसे जगह पे ही छोड़ दें कि ये किताब एक इनकम्प्लीट सी लगे। बट जिस तरीके से फाइनली वो आखिरी के 3-4 पेजेस आते हैं और जो आखिरी का जो सीन दिखाया है उन्होंने, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहूँगा वरना मैं को डिस्क्लोज कर दूँगा एक्साइटमेंट में। एज सुन एज आई रेड इट आई जस्ट स्टार्टेड क्रेविंग फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रायलॉजी ऑलरेडी। सो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये किताब पढ़ के मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, जो तो करनी पड़ती है अगर एक रिव्यू का वीडियो बन रहा है। तो सबसे पहला मैं बोलूँगा कि बुक अच्छी तरीके से एडिट की जा सकती थी। सो दैट मीन्स एडिटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, देयर आर नो टाइपोज, देयर आर नथिंग लाइक दैट, बट द पेजेस ऑफ द बुक कुड हैव बीन शॉर्टर बाई 40-50 पेजेस। कहानी थोड़ी छोटी हो सकती थी, ओवर डिस्क्रिप्शन कहीं पे वो थोड़े कम हो सकते थे। ऑल दैट कुड हैव बीन मैनेज्ड वेल। Similarly, I would say that because this book has a reference from ancient history to the present time, so the characters, their development, everything has been changed. So there was a lot of scope of putting philosophical element into the book, talking about life, talking about human beings, talking about values and all of that, and that would have given some kind of life lessons also to the millennials if they are picking this book, or even for the people like me who are in their 30s. Now I would say that the author has tried doing a lot of justice with many characters that are in this book, but still there are few who are just left aside. So there's a team of this Shaurya, Tina, Shakshit,
इन लोगों के नाम आते हैं पर इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा ऑथर बात नहीं करते, तो मे बी इनके बारे में कुछ सेकंड या थर्ड पार्ट में होगा जिसके कारण वो बात नहीं करते। बट क्योंकि आप ये किताब अभी पढ़ रहे हो तो आपको बहुत इनकम्प्लीट सा महसूस होता है जब इनकी बात हो रही होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनकी बात होती नहीं है, बहुत बीच बीच में आते हैं, कुछ करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा कैरेक्टर पे काम कर सकते थे इन तीनों के भी, जैसे बाकियों के में किया है। Now there's a section where grandfather of Rudra is telling him a story and that story is written in italic form, बहुत छोटे-छोटे font में लिखी हुई है। So I thought that when he's going to tell a story to Rudra which will disclose a lot many things to him, it would be very exciting and I would like reading it, but बहुत ही ज़्यादा अंडरवेलमिंग सा था वो, कुछ मज़ा नहीं आया, उसका कुछ कनेक्शन भी नहीं था मेन स्टोरी से, कुछ बहुत ज़्यादा वो जलवा भी नहीं कर पाया वो कहानी किताब में। तो मुझे पता नहीं कि ऑथर ने क्यों डाला या क्यों लिखा, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। मुझे वो एक अनवांटेड सा एडिशन लगा इस किताब में। फिर जैसे कि मैं बोलूँ, वेन एवर एनी ऑथर इज़ कॉन्फिडेंट दीज डेज दैट ही हैज़ रिटन अ गुड बुक एंड दैट कैन बी अडेप्टेड इनटू अ मूवी, सो द प्रॉब्लम इज़ दैट वो किताब को ना एक मूवी के स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में ज़्यादा लिख देते हैं। सो व्हेन यू विल रीड इट यू विल फील एज इफ वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो एक एक्टर को बताएं और एक्टर समझ जाए कि उसको क्या करना है सीन में। सो आई वुड आस्क ऑल दी ऑथर्स कि ऐसा ना करें, यू राइट अ बुक लाइक अ बुक, एंड जब भी आपको अडेप्टेशन पे काम हो तब आप उसको एक स्क्रीन प्ले की तरह लिखें। पहले से ही किताब को इस तरीके से ना लिखें कि वो किताब कम, एक स्टोरी कम, रीडर फॉर्मेट की किताब कम और एक मूवी फॉर्मेट की किताब ज़्यादा लगे। तो एक स्क्रीन प्ले राइटिंग और नॉवल राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसको समझें और उसी तरीके से किताब लिखें, नहीं तो वो फील नहीं आ पाता जो एक रीडर को आना चाहिए किताब पढ़ने का। बट इतना प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कुछ जगह पे है जो मुझे लगता है कि अवॉइड किया जा सकता था। सो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि बहुत ही फ्रेश स्टोरी है। मतलब मैंने बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ फैंटेसिकल और इस तरीके से लिखी गई हैं, बट ये किताब बहुत अलग है उन सबसे। मैं इसको 4.25 स्टार्स देता हूँ और आप सभी को बोलूँगा कि एक बार इसको ट्राई ज़रूर दीजिए। इसके 2 पार्ट और आने वाले हैं, उसके पहले इसको पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, अदरवाइज़ बाद में आपको पछतावा होगा कि 310 पेज की किताब पहले पढ़नी पड़ेगी, बाद में उसको पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा मूवी भी आने वाली है। सो गेट दिस बुक, मैंने सब लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। थैंक्स अ लॉट।